Hello everyone, this is Tarun and this is our first podcast and thank you so much for joining. I hope you are doing great. आज जो हमारे गेस्ट है मुकेश कपटवाल who is the general manager in one of the biggest MNCs that is HCL. So let's get straight into the podcast and learn about his struggle and success. Hi Mukesh sir, how are you? Hi Tarun, I'm doing good. How about you? I'm also doing good and it's my pleasure to take an interview of you. That's always welcome, Tarun. And it's always nice to talk to you anytime, right? And pleasure is always mine to have give this interview to you. So I'm very excited for it. Simple podcast which I really wanted to do, Mm-hmm. right? Good. So let's start. Sure. And I just want to cover up your some background because every story has a background. This is the Yeah, yeah, motto yeah. of that particular first word. Absolutely, Yeah, absolutely. So right. Tarun, talking about myself, right? I was born in a very small village, and it's Mm-hmm. like a film story. I was born in a very small village. Our home is like 20 kilometers from the main city, and my father was a retired government person. So he started his own business in the village. Uh, Mm-hmm. at that time when I was small, so in our village there are very less number of people who actually go to English medium school, and my father has a vision. He wants to send his children to the English medium. So he want कि यार बच्चे अंग्रेजी पढ़े English बोले, Yes. and because that's a vision. Even though he doesn't has that much of money, but he want Mm-hmm. his children to grow. So Mm-hmm. with his vision, he puts all the three kids. We have three siblings, my elder Mm-hmm. sister, me, and my younger brother. So he started off with the sister, and then I've joined a reputed school in our place Mm-hmm. called Haldwani. So Mm-hmm. it was very difficult for us because the main road, the highway is like 4 kilometers from our home, and from that highway, my school is like 12 kilometers. So my father used to pick him up. Our school bus comes to that highway at 6 o'clock in the morning. Oh, six We o'clock. 6 o'clock in the morning. So we wake up at around 4:30. It's a daily routine for us. We wake up at 4:30. My mom makes the food and everything for us, and my father picks her up in a scooter, and he drops it. We reach the bus stand by 5, I would say 5:30 or 5:40, so that we are just ahead of the bus timing. So whether it was summers, winters, or rainy season, we have to go. We don't have a car at that time, so we have to go. Definitely. Yeah, so nobody has a car at that time. It was a difficult time. Then then suddenly, what happened was, there was a big storm in our life. My father got passed away, and Oh. I was like in class third at that time. My mother was a government teacher, so Mhm. but it's very difficult for a single mother to raise his children, and that too in English medium. The expense was high at that time. So then my father was not there, even though we have the scooter, but nobody knows in our home how to drive that scooter. So we have I have my bicycle, and I rode daily that 4 kilometers from my home in the morning, like 5 o'clock in the morning. Started my cycle, Mhm. and at times in winters when everything was very dark, at time I was afraid of going, because in villages you don't have street lights, right? So it was a bit difficult initially, right? And Mhm. then I completed my 12th. uh, I was inclined to computers, and Mhm. I love computers at that time. So I want to be a programmer. I want to be a programmer at that time. And in 11th, I was working on C and C++. I thought I'll make good programs. I'll make something as a developer in my life. But life has other plans for me. So Right. so I came to Delhi आ गया सारे दोस्तों के साथ आके बोला भी सब मिलके जो एमसीए चलता था उस जमाने में, बीटेक और एमसीए होता था। तो बोले जी एमसीए Mhm. करेंगे सारे मिलके। तो ठीक है, पढ़े, एमसीए करना है, एमसीए में जॉइन किया, करा, क्लियर आउट किया, एमसीए कंप्लीट किया, फिर जॉब नहीं मिल रही बिकॉज़ उस समय जॉब्स ही बहुत कम थी।
जॉब्स ही नहीं मिलती, Mhm. जॉब्स ढूँढने लगे, इधर करना, वहाँ किया, ट्यूशन्स पढ़ाए, मतलब ट्यूशन्स भी पढ़ाए काफ़ी। Mhm. And then suddenly I got my first break in Wipro. My younger cousin brother, he was in Wipro, and it was Wipro BPO. Mhm. I started Mhm. my first job as a analyst uh, in a reputed BPO. Wipro was a big name at that time. Yeah, right. It was like Spectra Mind at that time, but yes, they have very good name. So I joined a project called Dell, and we were doing customer hardware warranty support. So I was into chat support, राइट। Mhm. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाता हूँ तुम्हें चैट के बारे में। तो हम लोग चैट सपोर्ट में होते थे और काफ़ी बड़ा फ्लोर था, 200-250 लोग करीब होते थे हम लोग। एंड वी यूज्ड टू डिस्कस कि यार क्या करना है कल को, लाइफ में क्या करना है, आगे बढ़ के क्या करना है। देन Mhm. समबडी सेड कि यार कल को जब तुम्हारी शादी हो जाएगी मुकेश या तरुण, तुम्हारी बच्ची शादी हो जाएगी, तुम अपने बच्चे को क्या बोलोगे? यार पापा क्या करते हैं? पापा ना चैट करते हैं। व्हाट्सएप चैट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे कस्टमर चैट थी। पापा चैट करते हैं और चैट से पापा को सैलरी आती है। मतलब हमें भी लगा यार ये हम क्या कर रहे हैं लाइफ में। बट दैट वाज अ टाइम, एंड देन आई डिसाइडेड कि यार आई विल हैव टू मूव टू सम टेक्नोलॉजी थिंग। सो विद दैट आई मूव टू HCL, my second company, and I'm very thankful to HCL that HCL has given me so much good experience, and the the exposure which HCL gave me, I really thank HCL and my seniors for that. फिर मैंने HCL ज्वाइन किया, और HCL के बाद तो फिर 11 years with HCL, almost 11 years. Oh, I joined as a service desk level 1 analyst. ऐसी so कॉल। you have already taken a double gratuity from HCL. हाँ 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 हाँ। so so हेडफोन तो हेडफोन लग गया तो शुरू से अभी भी नहीं उतरा है, देखो अभी भी वी वी आर यूजिंग दिस हेडफोन्स। सो नहीं, वेदर यू आर इन बीपीओ, अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप बीपीओ में हो तो आपको 1 आवर का जो ऑक्स ब्रेक होता है, 15 मिनट 15 मिनट 30 मिनट्स का ऑक्स ब्रेक मिलता है, 8 आवर यू हैव टू स्टिक विद योर हेडफोन। या बट बीइंग इन आईटी सेक्टर, हेडसेट इज योर फ्रेंड नाउ या सिंस दैट लॉकडाउन has started. बिल्कुल बिल्कुल, we have changed that, we have seen that difficult time, the COVID times, and we are fortunate enough to survive that COVID phase, everyone. So with God grace it was done। और फिर एचसीएल आ गए, फ्रेंड्स बने, धीरे धीरे ग्रो करा। आई वाज प्रमोटेड एज अ सीनियर एनालिस्ट, शिफ्ट लीड, ट्रैक लीड, मैनेजर, सीनियर मैनेजर। तो धीरे धीरे चलती गई लाइफ, मेहनत करते रहे, सपोर्ट भी किया, बहुत सारे लोगों ने, लॉट ऑफ पीपल सपोर्टेड मी। एंड देन आफ्टर 11 years आई थॉट कि यार it's time to move on। So I left HCL for a very wonderful company where I haven't worked in, and it is one of the best companies I have worked in. So I started working with the NEC India Corporation, and where I learned a lot of things. I met you there, right? Thank you. I met you. I did Windows transition for the first time in my life. I was like very new to Windows. I don't know much about Windows, but yes, I did that transition with the support of you and other team members. We were able to succeed. We successfully handled that project. Then I moved to internal IT, and then again यार लाइफ में फिर लगा कि यार HCL की याद आने लगी दोबारा से कि यार चलो HCL वो आदत हो जाती है ना कि आप कहीं काम करते हो तो it's like a HCL is your second wife, it's first wife, I can say. we call it in HCL, we call it, जो पुराने रिसोर्सेज होते हैं हम लोग बोलते हैं कि ना हमारा ब्लड ग्रुप ना HCL प्लस प्लस हो गया है। इट्स नॉट O पॉजिटिव, इट्स नॉट O पॉजिटिव, इट्स नॉट B पॉजिटिव, इट इज HCL पॉजिटिव। तो HCL से ज्यादा दूर रह नहीं पाए, फिर दोबारा HCL आ गए। तो then they gave me this role, and currently I'm working as general manager with HCL, and I'm taking care Nice. of a big healthcare project with a team size of around 350 team members। So that is about the professional, but professional अलग चीज है। Then we'll talk about success, what is success, and how do I feel for a small boy living in a village, and riding his bicycle in 5 a.m. in the morning। At that time I did not think कि यार कभी लाइफ में मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं तरुण के साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। Or secondly, if I especially talk about the famous people who are already famous now in YouTube and other social media, over the TV stars as well, right?
अगर यही स्टोरी बोलता है कि मैं 5 AM में जाता था, वो था, वो उसको पूरी न्यूज पेपर, उसको पूरे न्यूज चैनल, न्यूज मीडिया सब उसको जाते 5 AM उठते थे, जाते थे, देखो हाँ नाउ ही सक्सेस नाउ, शी इज सक्सेस नाउ, बट नाउ व्हाट एल्स, लाइक वी आर अ कॉर्पोरेट पीपल, राइट? तो राइट हम कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या वो गवर्नमेंट में भी कहीं जॉब करता है, तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। सब कहते बिल्कुल हैं ये तो 9 to 5 जॉब करता है, हाँ हाँ ठीक है। और और ऐसा नहीं कि ये मेरी ही स्टोरी है वी हैव hundred and thousand of people if you see around you will see people हम्म जिन लोगों ने struggle करके they have grown right हम्म so for getting to Delhi was the first dream and हम्म getting a car was a dream at that time, getting a home in Delhi. Now I have two in Delhi, so that was a हम्म dream for me. And then I got married, and thankfully my wife supported me a lot in everything. हम्म So now I have two kids. My wife also is a teacher, and दोनों बच्चे काफी मतलब पढ़ते हैं मेरे घर के पास ही स्कूल है, one of the best school they are going. So life has changed a drastic turn for that for a small boy who was living in a small village. But yes, now I can say ki I have achieved a lot of things in my life which I could not have think of at that time. But चीजें आती गई, लोग हेल्प, ऐसा नहीं कि अकेले किया हुआ है. You have a lot of people who influenced your life. I got influenced from a lot of people. मेरे managers थे, मेरे juniors ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है. And then your relatives, your friends, everyone has a big hand in your success. So I'll not say कि यार I'm hugely successful, but जितना लाइफ में एक आदमी को चाहिए अपनी जिंदगी जीने के लिए, खुश रहने के लिए, वो सब कुछ है उतने मतलब. सक्सेसफुल हो मींस यू कैन हाँ इजीली सर्वाइव बिल्कुल बिल्कुल मतलब इन इतना. इन मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। हाँ अगर आप दिल्ली में सरवाइव कर पा रहे हो, अपने खर्चे निकाल पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुली लिविंग इन दिल्ली. So that I can राइट। see. And then I got chance to do some transitions also. I've gone across the world as well. I've gone to Canada, Ireland, UK, and recently I went to Australia before COVID. That was my last trip. So I've seen other countries as well, and all because of the uh, I would say हार्ड वर्क यू हैव डन। not the hard work, but the IT. I love computers from my initial days. थोड़ा सा एक fascination होता है लोगों का, वो था. Even though I want to be a developer, I still want to be a developer, but अब तो मुझे developer का D भी नहीं आता है. वो होता है, रियली में होता है। मैंने भी देखा है कि मेरे भी कुछ फ्रेंड सर्कल है, तो दे हैव पास बीटेक, दे हैव क्लियर्ड बीटेक ऑन 70-80%। आई एम नॉट बीटेक गाय, आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट अ बीटेक गाय, आई हैव जस्ट डन अ सिंपल ग्रेजुएशन लाइक अ बीसीए, राइट? तो वो उनका भी बड़ा इंटरेस्ट है कि हम इम्प्लीमेंट मतलब डेवलपमेंट में जाए या कोई इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाए, लेकिन व्हेन दे हायर्ड फ्रॉम द कैंपस, तो आपको पता ही है क्या होता है, हाँ कैंपस के बाद हायरिंग भी हो जाती है, अगर जो ऑफ कैंपस हायरिंग होती है उसके बाद कहाँ कंपनी आपको बिठाती है यू नेवर नो। राइट तो वो तो द पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू हैव नेवर डिसाइडेड कि आपने जाना कहाँ पे है, वो आपको अपने आप की लाइफ कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के हिसाब से आगे लेती जाती है। अच्छा एक लेकिन एक मैं अगर एक बात बोलो 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 आप बोलो. I'll continue. मैं अगर एक बात कहूँ, यू एंड व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, I एक start और चीज आपने I started my career in 2008. Yeah, 2008 almost. अभी तो याद भी नहीं है यार कब स्टार्ट किया था. Almost yeah, 2008. Yes, around 2008. 2008 means you was a part of that team, means you was a part of the among 350 people, right? It means you are a normal representative who was just doing a chat support, and now you are leading 350 people. So Yeah. now time became change, हाँ और उसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम भी आई होगी इसके अंदर, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा ऑब्वियसली। तो obviously. कभी आपने सोचा था कि बीच में से कि लेट गिव अप, मैं नहीं कर रहा और नहीं हो रहा मेरे से, अब मैं से ये नहीं होगा, कभी ऐसा आपने सोचा? मीन व्हेन यू हैव एवर ट्राई टू गिविंग अप फ्रॉम योर करियर, फ्रॉम योर लाइफ एज वेल? Not from my life, but from a career point of view. When I was into the chat support, ठीक है, तो I was very good in whatever I do. So
देयर इज अ फंडा ऑफ माय लाइफ कि यार जो भी करना है अच्छे से करना है या फिर नहीं करना है। तो मैं जो भी करता हूँ आई ट्राइड माय आई गिव माय 100%, and that then let's see how results come in. So I was into this chat support करते थे, chat में थे, कर रहे थे, अच्छा करते। I became a shift lead के बाद next level विप्रो में था track lead का। For track lead every they have an IJP process जहाँ पे आप रिटर्न देते हैं और आपका इंटरव्यू होता है। मेरा एक बार रिटर्न दिया, क्लियर हो गया, इंटरव्यू हुआ, फेल हो गया, दोबारा दिया, फिर रिटर्न। तो ऐसे करते करते मैं 8 बार रिटर्न क्लियर कर गया। और 8वीं बार आई वाज लाइक कि यार मेरा ही नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों ट्रैक लीड नहीं बन पा रहा। मतलब टीम लीड की बात थी उस जमाने में, एंड एवरीबडी हु वर वर्किंग अलोंग विद मी दे वर टीम लीड एट दैट टाइम। तो मुझे लगा यार कुछ तो कमी है मेरे में, या फिर मैं गलत फील्ड में आ गया, कंप्यूटर मेरे बस का नहीं है। और आई एम फ्रॉम अ विलेज, तो हमारे गांव में तो क्या है कि यार खेती बाड़ी है, काफी बाप दादा छोड़ गए हैं, मतलब है जमीन, तो वही था कि चलो ट्रैक्टर वैक्टर खरीद लेते हैं, कुछ ये सब बेकार है, ऐसे पैसे वैसे भी नहीं मिल रहे हैं, लेट्स गो बैक। इंजीनियर तो ये भी सोचे चलो गोलगप्पे ही लगा लेते हैं हाँ, मतलब मुझे उस जमाने में लगता था कि मेरा जो घर है हल्द्वानी, वो एकदम पहाड़ से स्टार्टिंग, हमारे घर से नैनीताल इज लाइक 30 किलोमीटर्स। तो हमारे वहाँ लोगों का क्या काम है, मेजर काम जो है, मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, एक गाड़ी खरीद लेते हैं, लाइक टाटा सुमो या ऐसे कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, एंड देन दे पिक द पीपल फ्रॉम स्टेशन एंड ड्रॉप देम टू नैनीताल, अल्मोड़ा, पहाड़ पे ले जाते हैं। वो वहाँ का मेन बिजनेस था उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि यार इतना पैसा तो यहाँ मिल भी नहीं रहा है, ऐसा करते हुए टाटा सुमो खरीद लेता हूँ, खुद चलाना शुरू कर दूंगा, और कुछ दिनों बाद क्या करूंगा, 1 से 2 बना लूंगा, 2 से 4 बना लूंगा। तो मुझे ना ऐसा एमएलएम कर लोगे, हाँ वो हाँ कुछ हो गया, मैं भूल गया। मुझे वियर्ड, हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मुझे ना वियर्ड सा ऐसा आइडिया सा आने लगे कि यार सब कुछ छोड़ता हूँ, और दिल्ली में नहीं मजा आ रहा है। तो मैंने एक बार सोचा, मैं घर भी गया, तो मेरी मॉम से मेरी बात हुई जाके, और उनसे मैंने बोला कि ऐसा ऐसा आइडिया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि देख, ऐसा है, तेरी लाइफ है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट एक चीज सोचना कि तूने इतनी मेहनत करी, रात को सुबह स्कूल गए, स्कूल पढ़ा, यहाँ से ग्रेजुएशन करी, देन यू मूव टू दिल्ली जाके तूने एमसीए करा, एमसीए के बाद यू डिड दैट जॉब, एंड नाउ यू आर अगेन कमिंग बैक। तो फिर जो सारा मेहनत किया है वो सब तो जीरो हो गया ना। जब यही करना था तो फिर शुरू से यही कर लेते यार। स्कूल क्यों, होता है। इंग्लिश मीडियम क्यों भेजा तुम्हें, तुम लोग टैक्सी दे था शुरू से, आज तक तो शायद 6-7 टैक्सी बना ली होती तूने। तो जो किया है उसको ट्राई कर, गिव इट अनदर शॉट एंड सी व्हाट हैपेंस, एटलीस्ट गिव इट वन मोर ट्राई। तो फिर मैंने बोला चलो यार 1 साल और ट्राई करते हैं, अगर नहीं होगा देन आई लीव। बट अनफॉर्चुनेटली I got this opportunity in HCL, and that changed my life forever. So ऐसा होता है लाइफ में बहुत बार, एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, और उसके बाद ही एकदम से आपकी लाइफ एकदम से ऊपर को जाती है। तो इट इज जस्ट तो दैट। मतलब हम ये कहे कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे एचसीएल का हाथ है। हाँ, HCL is like my wife, na, first wife. फर्स्ट वाइफ ही ना। You said it earlier, right? राइट, 11 साल अपनी वाइफ के साथ काटे, फिर आपने वो एक डिवोर्स लिया, एक पॉज लिया, देन आफ्टर फिर आपने उसके साथ फिर रहना स्टार्ट किया। फिर से प्यार बढ़ गया मेरा उसके लिए। फिर से प्यार बढ़ गया। इट्स I नाइस बिकॉज आई हैव सीन योर प्रोफाइल इन लिंक्डइन। ठीक है, तो आई हैव चेक योर प्रोफाइल from where you have started, just like representative, right? I'll say representative, whatever designation company provide you, it's up to the company, right? So right now I'm working as an engineer, but I am working as an analyst in the company, but I have a designation of engineer. It doesn't matter what exactly I am doing, it does matter. तो कहाँ आपने रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट किया, नाउ यू बिकेम अ जनरल मैनेजर, राइट? एक नॉर्मल आपको कोई नॉर्मल एम्प्लॉय देखेगा, चाहे वो एचसीएल का हो या एनईसी का हो या कोई, यार मुकेश जो यार जनरल मैनेजर, his life is completely settled now. But no one will talk about your background or whatever the journey you have covered so far to achieve this position. कुछ होता है कि किसी को किस्मत से मिली, किस्मत से तभी मिलता है जब आप मेहनत करते हो। बिल्कुल एफर्ट तो आपको ही डालने पड़ेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि
there is something called पॉजिटिव थिंकर्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड नेगेटिव थिंकर्स इन योर लाइफ. Negative आपने thinking. आपने सुना होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं लाइफ में, जो लोग जिनके साथ पता है क्या होता है कि जैसे आप लाइन में लगे हैं ट्रेन की, तो जैसे ही आपका Mhm. टिकट लेने का नंबर आता है, लाइन वो टिकट खिड़की बंद हो जाती है. ठीक है. या या आपका कोई Right. कंपटीशन है, आप एक नंबर से फेल हो गए, या आप कहीं जाने वाले थे, आपकी बस छूट गई. मतलब उनके साथ क्या होता है, वो जो कुछ जैसे कहीं जाना था, हाथ पैर टूट गया, तो उनको लगता है यार भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है. ठीक है. लेकिन देर आर पॉजिटिव थिंकर्स ऑल्सो हु ऑल्सो थिंक्स इफ आई वॉज अ पॉजिटिव थिंकर, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और मेरा हाथ टूट गया, तो Mhm. नेगेटिव थिंकर को बोला यार भगवान क्या कर रहे हो, मेरा हाथ तोड़ दिया, अब मैं 1 महीने तक बिना हाथ के कैसे चलाऊंगा काम, खाना कैसे खाऊंगा, उल्टे हाथ से खाऊंगा, वट मैं वैसा सोचूंगा. बट इफ आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, आई विल थिंक कि भगवान थैंक यू गॉड, यू हैव सेव्ड माय लाइफ. इट इज जस्ट दैट मेरा हाथ ही टूटा और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई. हो सकता है मेरे दोनों पैर टूट जाते, मेरे पैर कट जाते, या मैं मर भी जाता. तो थैंक यू गॉड. कुछ भी हो सकता था. हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आपने ये इतनी बड़ी सी प्रॉब्लम छोटे से उसमें सॉल्व कर दी. तो इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंग. और एंड व्हेन यू स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिव ना तरुण, you will see Mhm. people around you are becoming positive. एक नेगेटिव थिंकर होगा, उसके पास उसके आसपास के लोग भी सब नेगेटिव थिंकर होंगे, Negative. और उनकी लाइफ में नेगेटिव ही नेगेटिव होगा. लेकिन इफ यू आर अ पॉजिटिव थिंकर, आप इन्फ्लुएंस करोगे लोगों को, लोग आपके पास जुड़ने लगेंगे, और फिर पूरा एक पॉजिटिव सी ऑरा क्रिएट हो जाएगी, एंड दैट विल टेक यू हायर. दैट व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय ओवरऑल एक्सपीरियंस. 40 साल हो गए लाइफ में, तो लाइफ में इतना ही सीखा है कि बी पॉजिटिव, whatever comes in your life, तो whatever happens for a cause, तो उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो. HCL छोड़ा था, तो Mhm. लगता था यार HCL छोड़ दिया क्या हुआ, बट NEC गया तो तुमसे मिला, बहुत लोगों से मिला. सो दैट इज Mhm. अगेन अ पॉजिटिव इन दैट. तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. दैट व्हाट आई कैन So if I especially talk about your SCL, NEC and then SCL journey, से. ठीक है, तो सीखा तो आपने बहुत कुछ ही है, जो आपके प्रोफाइल से पता चलता है, और मुझे पर्सनली भी शायद पता ही है कुछ ना कुछ. राइट. लेकिन नाउ हाउ मीन्स, क्या आपने उससे सीखा, मतलब आपने पर्सनल लेवल पे क्या एक लेसन सीखा, कि जैसे मैंने एनईसी गया, उसके बाद अगेन मैं एचसीएल गया, तो उसको लेसन सीखा, और आप औरों को भी लेसन देना चाहोगे कि जैसे आपने पॉजिटिव का बहुत अच्छा पॉइंट सीखा. अगर मैं पॉजिटिव की बात कहूँ, अगर मैं कहूँ कि यार मेरे से नहीं हो रहा, यार कुछ नहीं हो रहा, तो मैं लिटरली कहूँ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ थोड़ा सा, ये आपका, लेकिन मैं एक स्टोरी को 1 मिनट लूंगा आपका. और बिल्कुल. कि मैंने देखा एक बार, मैं भी बड़ा एक टाइम पे बहुत फेडअप हुआ था. कुछ होते हैं, हर कोई फेडअप होता है अपनी लाइफ के अंदर. तो मैं जैसे ही अपनी गली के बाहर निकला, सोसाइटी के बाहर निकला, तो मैंने ये देखा कि एक बंदे के पास एक हाथ नहीं है, और स्टिल ही वाज वर्किंग हार्ड टू अर्न अ ब्रेड एंड बटर फॉर हिम. ठीक है. तो मैंने यार कोई हाथ नहीं है, जब करा मैं क्या फेडअप हो रहा, मेरा तो भगवान ने दिमाग भी दिया, जुबान भी दिया, शरीर भी दिया है, 2 हाथ भी दिए, 2 टांगे भी दोनों दिए, सब दोनों तो हाथ सही भी चल रहा है. दिए. बिल्कुल, दोनों हाथ भी दिए. क्यों मैं क्यों फेडअप हो रहा. तो उससे मैंने एक थोड़ा एक मोटिवेशन लिया उस बंदे से. राइट. चाहे मैंने देख कर लिया, मैंने किसी को शेयर नहीं किया कि हाँ भाई तू बहुत ग्रेट है, तू ये कर रहा है, मैंने नहीं बोला, क्योंकि राइट. हर किसी का नेचर अलग है. तो करेक्ट. मतलब आपने क्या उसमें एक लेसन की मैं बात करूं, लाइक आपने इतनी लंबी जर्नी आपने क्लियर करी, तो व्हाट यू हैव लर्न एंड व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस एज वेल ओके. एंड मी राइट. itself. Okay, Tarun, so what I've learned in my overall experience of the 16, 17 years, whatever experience I have, plus the 40 years of life experience, what I learned is you will not grow alone in this world, right? You will need people, right? And there is a hierarchy, and there is a structure. You have this pyramid structure. नीचे ज्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं, ऊपर कम होते जाते हैं. बट पिरामिड में ऊपर आप तभी जाओगे जब आपके नीचे अच्छे लोग आएंगे. तो यू हैव टू ग्रूम पीपल, यू हैव टू मेक पीपल. अगर मैं आज एक एजेंट हूँ और मैं सारे एजेंटों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रख रहा हूँ, सबको ग्रूम कर रहा हूँ, तो मैं अगले लेवल पे आ जाऊंगा. मे बी अ शिफ्ट लीड लेवल. अब अगर मेरे नीचे मैं 3 शिफ्ट लीड बना दूंगा अपने ही जैसे, तो देन आई विल बिकम अ ट्रैक लीड.
जिस दिन मैं अपने नीचे 3 ट्रैक लीड बना दूंगा, मैं मैनेजर बन जाऊंगा। मैं अपने नीचे 3 मैनेजर या 4 मैनेजर बना दूंगा, मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा। दैट इज हाउ यू ग्रो। तो फर्स्ट थिंग, you have to trust people, you have to groom people, and you have to take people with yourself. जब तक आप लोगों के साथ चलोगे और भला भला करोगे, कभी भी हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप किसी का अच्छा कैसे कर सकते हो, बिकॉज अच्छाई एक ऐसी चीज है जो हमेशा घूम के आती है। हो सकता है आपको, आप शॉर्ट टर्म में आप किसी का बुरा करें और आपको फायदा हो जाए उससे, बट वो भी वापस घूम के आएगा और आपका शायद बहुत बुरा हो जाए उससे। तो बेटर है आप लोगों का भला करो और वो ही भलाई या वापस आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। तो बी गुड टू पीपल, कभी ग्रूम। कुछ हुआ है आपके साथ ऐसा? हाँ, बहुत। अगर मैं कहूँ तो ये बुकिश बुकिश तरह सी है। आई विल बी वेरी हाँ ऑनेस्ट हाँ विद यू, हाँ, दिस इज मतलब ये अगर मैं कॉमन कहूँ, कभी आपके साथ एक्चुअल में प्रैक्टिकल ये हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। if I want to take an example from you. बिल्कुल बिल्कुल। I have live examples. I will I'll give you a very good example. There was one of my track lead. He was with HCL. I was a manager I was service desk manager at that time. He was my track lead, and वो ना बहुत परेशान था। He was in Noida and he was very good. He was actually very good. तो उसको ना लखनऊ जाना था, क्योंकि लखनऊ उसको घर था। यहाँ पे वो रहता था अपनी वाइफ के साथ। बहुत ज़्यादा कमाता भी नहीं था, सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी एंड खर्चे थे। तो उसको बोला था मुझे घर जाना है और आई वांट टू गो होम। मैं समझाया रुक जा, वी विल डू समथिंग। सडनली क्या हुआ, एचसीएल ने अपना ऑफिस खोला लखनऊ में, एचसीएल की ब्रांच खुली और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई। मुझे बोला सर मुझे लखनऊ जाना है। तो मैंने बोला अब प्रॉब्लम क्या थी कि ही इज अ वेरी गुड, अगर मैं उसे छोड़ता तो मेरे पास काम करने वाला कोई अच्छा बंदा नहीं था। ये प्रॉब्लम है। हाँ होता है। देखो अगर आपके नीचे कोई बहुत अच्छा काम करने वाला बंदा है तो आप उसे छोड़ोगे नहीं। मेजोरिटी ऑफ द मैनेजर विल नॉट लीव हिम बिकॉज इट विल मेक देयर लाइफ डिफिकल्ट। क्योंकि वो वाला एक नया बंदा ढूंढना, उसको ग्रूम करना, उस लेवल पे लाना। तो बोला लखनऊ जाना है। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला इसको लखनऊ, मेरे मैनेजर ने मुझे समझाया कि देख मैं उसे भेज दूंगा लखनऊ, बट तेरे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो विच आई सेड कि ठीक है, दैट इज अगेन जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने बोला ठीक है, आई विल डू दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट लेट्स डू गुड फॉर दिस पर्सन एंड लेट्स सी कि हम उसे कैसे भेज सकते हैं उसके घर। तो फाइनली मैनेजर से लड़के, एसडीएम से लड़के, मैंने सब कुछ करके आई हैव सेंड हिम होम। मैंने उसको वहाँ भेजा। वहाँ जाके उसको ट्रैक लीड बनाया, दूसरे प्रोजेक्ट में अपने प्रोजेक्ट से रिलीज किया। आई स्ट्रगल्ड फॉर लाइक 3 to 6 months for that until I found a good match, but I was happy कि मैंने अपनी तरफ से उस बंदे की हेल्प की। ठीक है, हेल्प करी, भूल गया। ठीक है भाई, लाइफ चलती रहती है आगे। मैं भी चला, वो भी चला, वो जॉब करता रहा। आई लेफ्ट HCL, आई मूव टू NEC। ठीक है, NEC was doing good for me, but suddenly everything changed in NEC also. My boss changed the company, and after that the situation was not I would say that much. The environment was in the project I was working, the environment was that not that much good. So I thought कि let's search for some job, and suddenly वो बंदा जिसको मैंने लखनऊ भेजा था, he called me one day कि सर कैसे हैं। मैं बोला भाई बहुत अच्छे हैं अमित, आप बताइए। बोले सर मेरे एक बॉस है कोई यूएस में एंड ही इज लुकिंग फॉर सम गुड पीपल, और मैंने आपका रेफरेंस दिया हुआ उनको। तो मैंने बोला अच्छा, वेरी गुड। तो बोले सर मैं ना आपकी एक बार बात करा देता हूँ, मैंने आपका फीडबैक भी दिया है बहुत अच्छा, और आप एक बार इंटरव्यू कर लीजिए। सो ही गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी। आई हैड एन इंटरव्यू। Fortunately that person Amit has a very good connect with that person. So interview was like normal questions, and then I got selected, and then I become a general manager. So that's how life does good to you. अगर आपने किसी के साथ भला किया है, no matter it will hurt you a lot at that time, but वो घूम के वापस आता है। वेट करो तो आ ही जाता है। ये हाँ, आप
इमीडिएट एक्सपेक्टेशन करोगे कि वो हाँ आएगा, तो इट्स नॉट अ स्टॉक मार्केट कि हाँ हाँ, वेदर इट विल बी अ प्रॉफिट और लॉस. इट इज लाइक म्यूचुअल फंड कि आप पैसा डालो, आप बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, टाइम लगेगा, बढ़ेगा. यू हैव टू गिव हिम टाइम. शेयर मार्केट नहीं है कि आज लगाया तो कल डूब जाएगा या आज लगाया तो कल एकदम से बढ़ जाएगा. तो यू हैव टू ट्रस्ट पीपल, यू हैव टू हेल्प पीपल, एंड दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि अच्छाई हमेशा घूम के वापस आएगी. तो ऑलवेज डू गुड विद पीपल, लोगों की हेल्प करिए जितना हो सके अपने एंड से. अब इतना भी ना हो कि अपना ही खत्म कर दे सब कुछ, बट हेल्प हेल्प कीजिए लोगों की, व्हिच इज तो सर इसमें अगर आप कहो, इफ आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्रॉस क्वेश्चन फ्रॉम यू, कि गुड. आप कह रहे हो औरों को गाइड करो, इसमें दो क्वेश्चन मैं आपके लिए निकालना चाहूंगा. First thing in a corporate sector, which I have heard a lot when I used to go in an office, but after lockdown, कि बस अपनी लोग मतलब की बात ऑफिस मतलब की बात बोले तो मतलब वर्क से रिलेटेड बात करते हैं एंड वी जस्ट एंड दिस कॉल खत्म. राइट. लेकिन जब हम ऑफिस में थे तो बहुत सारी चैट्स वगैरह चलती थी. तो हाउ यू विल रिप्रेजेंट फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म? तो चलो बॉलीवुड चल रहा है, नेपोटिज्म होता होगा कॉर्पोरेट में, लेकिन अब 4 साल हो गए घर बैठे हुए तो पता ही नहीं चलता कि है या नहीं है. अब तो रिमोट इंटरव्यूज हो रहे हैं. लेकिन आप फेवरेटिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है. नाउ यू आर ऑन दैट पोजीशन कि आपको पता चल, कहते हैं पिरामिड ऊपर बैठा है, नीचे क्या चल रहा है सब पता चलता रहता है. तो वो कैसे देखते हैं? क्योंकि कोई ना आप सीधा ब्लेम कर देता है, यार वो तो यार जनरल मैनेजर है, या वो तो मेरा सीनियर मैनेजर है, मेरे को चांस नहीं मिल रहा, वो उसका फेवरेट है. वो फेवरेटिज्म वो कैसे आप करोगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है कॉर्पोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत बड़ी चीज है यार. Absolutely. And the similar question, I was again I was a senior manager at that time, wipro HCL में. एक लीड था मेरा, उसने भी मुझसे यही सवाल किया था उस टाइम कि व्हाट डू यू थिंक कि आर वी हैविंग फेवरेटिज्म इन आवर प्रोजेक्ट. और बहुत बार ऐसा होता है कि मैनेजर बोलता है ये मेरा फेवरेट लीड है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड why he is a favorite person. Suppose I'm a manager, I have 4 reportees under me, and out of those 4 I have one as a favorite. Right. Now let's try to understand why he is my favorite. Suddenly मेरे पास कुछ काम आता है ऐसा जो मुझे करना है, एंड आई हैव अदर स्टफ्स टू डू. मेरे पास 4 काम है एकदम से, तो मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स टेक सम हेल्प. तो उन चारों में से मुझे एक जो सबसे ज़्यादा कैपेबल है, जिसको मैंने ग्रूम भी किया, मैंने उसको बोला यार ये काम कर दे. चारों को दिया, बोला चारों करके ले. एक ने बोला कल करूंगा, एक ने बोला परसों करूंगा, उसने बोला 4 घंटे में करूंगा, चौथा बंदा बोला कोई दिक्कत नहीं सर, आपने काम दिया, अभी देखो करके लाता हूँ. एंड विद इन एन आवर वो आपका सारा वाला काम करके आपको लेके आ गया आपके पास. ठीक है, आप खुश? ठीक है. नेक्स्ट टाइम कुछ हुआ, फिर वो करा. ऑफिस में कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपने उसको बोला, बाकी लोगों ने फोन तक नहीं उठाया, आपने उसको कॉल किया, तो बोला हाँ जी, आई विल टेक द ओनरशिप, आई विल गो, आई विल टेक दैट thing, or I'll resolve those issues. So he is basically a problem solver and a go-to man for you, right? Now, when at the end of the year there is an appraisal which is going on, okay, you gave him good marks because he was agile, he was productive, his availability is more than 100%, and he resolved majority of your issues. आपने उसको distinguished performer की rating दे दी. Now the other 3% will start shouting कि यार तरुण तो सर का फेवरेट है, इसलिए तरुण को इनने रेटिंग अच्छी दे दी है, हम लोगों ने इतना ज्यादा काम किया पूरे साल. जबकि दे हैव टू, आई वुड से, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि उनने कितना काम किया. साल भर कुछ नहीं करा, ईयर एंड में जब दूसरे को रेटिंग मिल गई तो बोले यार ये तो फेवरेट है बॉस का, इसलिए उसको रेटिंग दे दी. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो फेवरेट क्यों है. ऐसा नहीं है कि वो उनका बेटा है या उनका भाई है या उनका रिश्तेदार है. वो चारों लोग तो कॉर्पोरेट में ही है, साथ में काम करते हैं. तो दैट पर्सन इज ओनली फेवरेट बिकॉज ऑफ हिज वर्क, बिकॉज ऑफ द असिस्टेंस विच ही गिव्स टू हिज बॉस, एंड द he eases the workload from his bosses. So if you can do it for your bosses, you will always become the favorite of your boss. और जब आप अपने बॉस के फेवरेट होगे तो you will get growth, you will get money, you will get whatever you want to. But to become that favorite, you have to do lot of hard work. तो जो लोग वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं,
Again, going back to our previous example, पॉजिटिव थिंकर्स एंड नेगेटिव थिंकर्स. पॉजिटिव थिंकर बोलेगा बोलेगा हाँ जी करेंगे, मेहनत करेंगे हम. इस बार पिछली बार तरुण फेवरेट था, इस बार हम फेवरेट बन के दिखाएंगे बॉस के. लेकिन जो नेगेटिव थिंकर बोलेगा यार ये तो तरुण ही फेवरेट है बॉस का, चाहे कुछ भी कर लो ये तरुण का ही बेनिफिट करेंगे. तो फेवरेटिज्म इज फेवरेटिज्म है. आई विल नॉट डिनाई दिस. In any industry or any work, there will be favoritism, but favoritism only happens when somebody does a hard work. तो आप अपना अच्छा काम करो, you'll always become favorite of your bosses, your company. आपने देखा होगा कंपनीज में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है. एंड ऐसा नहीं कि वो रिश्तेदार है कंपनी, शिवनादर के रिश्तेदार नहीं है बहुत सारे, बट उन लोगों को क्यों दे रहा है शिवनादर? बिकॉज दे आर डूइंग हार्ड वर्क, इसीलिए वो शिवनादर के फेवरेट हो गए. So that is I can say on favoritism in industry. You will keep talking about the hard work, and you have never spoken about smart work, right? Hard work तो एक रिक्शे वाला भी करता, तब यही कहते हैं आज की डेट में. दिल्ली में तो कॉमन है ये वाला डायलॉग. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So definitely, I will. How you will differentiate hard work and smart work? Hard work सारा दिन 12 घंटे लगे रहना ऑफिस के अंदर, और वो अपना काम स्मार्ट वर्क करना कि अपने काम को थोड़ा ऑटोमेट की तरफ ले जाना, अपना काम 9 घंटे का काम 7 घंटे में करना, जो एक नॉर्मल बिजनेस एनालिस्ट वगैरह या जॉब नॉर्मल कॉल सेंटर्स हो गए या बैक एंड ऑफिस हो गया. लेकिन आईटी में तो आपको पता ही है, यू नो. तो आईटी में दोनों ही चलते हैं, स्मार्ट भी चलता है और हार्ड वर्क भी चलता है. अगर आईटी में आप 18 आवर्स काम कर रहे हैं, not on a daily basis, but any kind of critical issues, critical project, critical implementation, project deadline, बहुत चीजें हैं. तो एक वो हार्ड वर्क भी है. स्मार्ट वर्क कैसे कि आपने उसको सक्सेसफुली कैसे इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे. हार्ड वर्क तो कोई भी कर सकता है. मैं तो कहूँ तो स्मार्ट वर्क सब नहीं कर सकते. राइट ओके राइट. So hard work and smart work both are important, I would say. Right, there has to be a mix of both. Now what is a smart work? Right, पहले समझना हमें पड़ेगा कि स्मार्ट वर्क होता क्या है. आपको कुछ काम करना है, उसके 4 स्टेप्स है, 1 2 3 4. ठीक है, आप शुरू में करोगे आपके लिए वो डिफिकल्ट है, आप उसमें ज्यादा टाइम लगाओगे. ठीक है, देन यू विल रियलाइज कि यार लेट्स टेक एन एग्जांपल. रोटी बनानी है आपको. रोटी बनाने के लिए आपको पता है आटा गूंदना है पहले, फिर आटे को रोटियां बनानी है, गोल गोल बनानी है, देन गैस में डालना है, देन वो करना है. दैट्स अ प्रोसेस व्हिच यू डू. आप नए फ्रेशर हो गए, आप करोगे जैसे नॉर्मल सारे लोग करते हैं, पर धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे. आप सोचोगे यार इसमें कुछ ऑटोमेशन लाया जाए, एंड देयर कम्स द नीड ऑफ ऑटोमेशन कि यार इसमें कुछ ऐसा करा जाए कि जल्दी हो जाए. ठीक है, तो आपने बोला, आपने एक मशीन खरीद ली, वो जो आटा गूंदने वाली मशीन होती है, फटाफट उसने आटा गूंदा. देन आपने एक मशीन खरीद ली जो रोटी बनाने वाली मशीन होती है, एंड देन यू क्रिएटेड अ मशीन कि जिससे कि रोटी भी बन जाए. तो आप जो काम आप 1 घंटे में करे थे आपका 5 मिनट में हो गया. लेट्स सी, आपको एक चम्मच दे दी जाए, ठीक है, और आपको बोले कि एक आपको 30 फीट का गड्ढा खोदना है उस चम्मच से. आप अगर 300 साल भी लगे रहोगे ना, तो वो 30 फीट का गड्ढा उस चम्मच से नहीं खोद पाओगे. इट इज अ हार्ड वर्क. बट स्मार्ट वर्क प्रोसेस सेम है. चम्मच ऐसे उठानी है, ऐसे डालनी है, मिट्टी निकालनी है. आपने एक मशीन ली, मशीन को यूज किया, मशीन बनाई और मशीन से यूज करना शुरू किया. दैट इज स्मार्ट वर्क. तो you have to decide कि whether you have to do hard work, whether you have to do smart work, or whether you have to do mix of. ऐसा नहीं है कि मशीन से भी आप जब खुदाई करोगे तो अपने आप हो जाएगा, वहां पे भी आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा, बट उतना नहीं देना पड़ेगा, वो चम्मच वाला हिसाब नहीं करना पड़ेगा. तो विद दिस द नीड केम फॉर ऑटोमेशन. आईटी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही था इनिशियली कि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मतलब 1000 2000 5000 लोग बैठे हुए थे, सब लोग करते थे. जैसे आई विल टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एडी अकाउंट क्रिएशन. Not going into that much technical part, but एक यूजर अकाउंट क्रिएशन, आई वुड से यूजर अकाउंट क्रिएशन था. 4 एनालिस्ट बैठे हुए थे, 500 अकाउंट बनाने आ गए. एडी खोला, फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, पासवर्ड डाला, बनाया और बनाते रहे. पूरा दिन उनका यही काम होता था, बैठ के हार्ड वर्क कर रहे हैं. आज सर आज 500 बनाने थे, मैंने आज 50 बनाए, इसने 30 बनाए, इसने 20 बनाए, ऐसे करते रहे. बट देन somebody realized कि यार ये काम तो हम ऑटोमेटिकली भी कर सकते. We can write down some script. I can give
एन एक्सेल शीट में मैं डेटा डाल दूं, अपलोड कर दूं और वही काम मेरा 1 घंटे में हो जाएगा। तो जिसने वो स्मार्ट वर्क बनाया वो उन 10 लोगों की नौकरी तो खा गया पहले, ठीक है, बट वो ग्रो कर गया लाइफ में। तो इट इज ऑल अबाउट गेटिंग गुड आइडियाज, ठीक है, एंड और आइडियाज आपको कब आएंगे, जब आप वो काम बार बार करोगे। तो इनिशियली तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, बट धीरे धीरे जब आप चीजें को सीख जाओगे, यू विल बिकम स्मार्ट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि करेक्ट। आप पहले दिन से स्मार्ट, ऐसा नहीं होता कि आप कॉलेज से निकले और आप बोले अरे आई जॉइंड HCL, आई डू ऑल स्मार्ट वर्क एंड आई विल बी द GM और AGM DGM व्हाटएवर इन 2 years। इट विल टेक टाइम, बट हाँ कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, जल्दी सीख जाते हैं स्मार्ट वर्क, कुछ लोग लेट सीखते हैं, बट अल्टीमेटली सीखते सारे ही हैं। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर स्टेटमेंट, जो आप पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हो। हम्म, आपने बोला कि अपने जो सबॉर्डिनेट्स है या कलीग्स है उनको ट्रेनिंग दो, उनको सिखाओ, लर्निंग बांटने से ही लर्निंग बढ़ती है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। कॉमन है ये आज की डेट में। लेकिन क्या होता है, आपकी टीम में 15 बंदे हैं, आपने सबको सिखाया, लेटर ऑन बैक बाइटिंग हुई, आपके खिलाफ हुई, तो एक चीज चलती है मतलब आपने उनको सिखाया, नाउ दे आर गुरु इनफ, ठीक है वो, but they are not giving you that kind of priority which they used to provide you before giving a training to them. हम्म, तो ऐसा भी आपने कभी सिनेरियो फेस किया होगा, क्योंकि लोग लोग गिव अप कर देते हैं, राइट? मैं पर्सनल तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैंने देखा है लोगों को, ठीक है, हम्म, कि लोगों के साथ अगर ये चीज होती है तो लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन वही गिव अप करना लोगों की जर्नी के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हम्म। कोई आगे बढ़ नहीं पाता, वो कहता है यार वो तो कर रहा है, मैं क्यों करूँ? तो ये चैलेंजेस कभी आपने फेस किए ही होंगे अपने, तो थोड़ा सा शेयर करिए, मतलब पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या होता है। कि हम देखते हैं हर मतलब जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से नहीं है, या इवन दो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, तो मैं पुलिस की लाइफ बड़ी इजी समझता हूँ कि हाँ बहुत इजी लाइफ है। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग विद देम, ठीक है, उनसे डिफिकल्ट जॉब मुझे अपनी बहुत इजी लगती है, उनकी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। बहुत ज्यादा। 18 आवर्स जागना, तो कहते हैं ना, जब तक आप दूसरों की थाली में देखोगे तो आपको लड्डू बहुत अच्छे दिखेंगे, तो एक्चुअली वो लड्डू का टेस्ट लोगे पता चलेगा वो कितना बिटर है, कड़वा है या सॉर है आपको नहीं पता। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि लाइक कि आपने किसी को लर्निंग दी, ठीक है, और लेटर ऑन, जैसे मेरे को पता है आपका नेचर, आई हैव ऑलरेडी वर्क विथ यू, ठीक है, तो आपने किसी को लर्निंग दी, बट बैक फाइटिंग हुई, वो आपकी प्रायोरिटी जितनी पहले थी अब वो उतनी प्रायोरिटी नहीं रही। कभी आपके साथ ऐसा फेस हुआ, किसी को पता चल जाए? एंड Tarun, it happens in industry. It इट happens हैपेंस। कि it happens कि आपने ग्रूम किया, आपने 10 लोगों को ग्रूम किया, 10 में से 6 लोग तो ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद करेंगे कि यार मुकेश ने मुझे ग्रूम किया है, एंड they'll always respect you. There are those four people, four extra smart people. I'll not say smart people. They're extra smart people. तो वो बोले कि यार अब तो सीख लिया, सब कुछ आ गया, अब क्या जरूरत है इसकी मुझे, हाँ मुकेश की जरूरत मुझे क्या है। जरूरत है, what I can do, I can replace him directly, right? But one thing they did not understand कि यार मुकेश ने जो उनको सिखाया या तरुण ने जो उनको सिखाया, तो सिखाया क्यों उसने, राइट? वो इसलिए सिखाया कि वो जो आपको सिखा रहा है उसका मास्टर है, वो सब कुछ वो करता हुआ आ रहा है 10 साल 20 साल से। अ, जंगल में एक कहावत है कि बिल्ली ना सबको सिखाती है शेर को, बट वो पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती। तो यू हैव टू बी दैट मच स्मार्ट कि यू आर गिविंग थिंग्स टू योर सबॉर्डिनेट्स। तो वो ट्रम्प का इक्का थोड़ा सा अपने पास रखना चाहिए, मतलब यू हैव टू बी a bit smart also because there is a lot of competition in industry, in IT industry, right? You cannot टेल एवरीथिंग, और सब कुछ जो आपने एक्सपीरियंस से लाइफ में सीखा है। अगेन अगर मैं बोलता हूँ कि ABCD 4 चीजें मैंने सीखी हैं और मैंने उसको सिखा दिया, वो सेम है, वो सब, वो ABCD हर 4 लोगों को आती है दुनिया में, लेकिन उन ABCD के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप किसी को नहीं सिखा सकते। वो चीजें अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हो, तो वो आप किसी को सिखा नहीं सकते, और वही आपका USP है जो आपको आगे ले जाएगा। तो आप, आई वुड अगेन से, जितना आपको आता है आप कोशिश कीजिए आपके सबॉर्डिनेट्स को सिखाइए, उनको ग्रूम कीजिए,
उनको ग्रोथ कराइए, क्योंकि जब तक वो ग्रो नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं करोगे. बट करेक्ट. देयर इज समथिंग विच यू लर्न फ्रॉम योर लाइफ, जो आपके लाइफ एक्सपीरियंस है एंड द टाइप ऑफ पर्सन यू आर, राइट. वो तो कोई नहीं आपसे ले सकता. तो हो सकता है कि कोई बंदा आपकी सारी चीजें सीख जाए और बोले कि यार आई कैन रिप्लेस यू, बट ही कैन नॉट रिप्लेस योर नेचर, ही कैन नॉट रिप्लेस योर आइडेंटिटी. एंड दैट आई कैन थिंक. But बहुत they बार, can replace the salaries. हाँ, they can at times you will see people, आपसे जूनियर्स आपसे अच्छे रोल पे हैं एंड दे आर अर्निंग Mhm, मोर देन यू. सो mhm. अगेन, टाइम टाइम होता है, हर एक आदमी का टाइम आता है, किसी का Time जल्दी आता है. आता है, किसी का लेट आता है. कोई बहुत Mhm, जल्दी ग्रो कर जाता है लाइफ में, और कुछ लोग को टाइम लगता है. बट एवरीबडी टेक्स इट्स ओन टाइम. एंड एंड फॉर गेटिंग सक्सेस आई वुड अगेन अगेन से हार्ड वर्क इज द की. वो करना नहीं छोड़ना चाहिए. जब तक आप हार्ड वर्क कर रहे हो तब तक आप हमेशा, और कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, सिंपल. अभी 40 साल हो गए हैं, अभी 10 15 20 साल की नौकरी और है, जॉब है. mhm. तो अगर मैं बोलूँ कि यार मैं आई बिकम अ जीएम, now what is in my life, I'm living happily, so then I will stay on this level only. You have to aim bigger. जितना ऊपर सोचोगे आप उतना ऊपर जाओगे. टारगेट इज कि यार सब कुछ आना चाहिए. अगर आप कुछ कर रहे हो इस इंडस्ट्री का, तो यू हैव टू नो एवरीथिंग. बट ऑन योर क्वेश्चन कि ऐसा हुआ है, हाँ ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है कि मैंने अपने जूनियर्स को सिखाया और दे डिड द बैक बाइटिंग, और करके वो ऊपर चले गए, ऊपर भी चले गए. मतलब बहुत बार ऐसा था कि मेरे जूनियर्स, मेरे रिपोर्टीज भी मुझसे ऊपर थे ग्रोथ में. और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनने मेरे साथ काम किया जो काफ़ी नीचे डिजिग्नेशन पे अभी बैठे हुए. तो लाइफ गिव्स चांस टू एवरीवन. हो सकता है उनको ऐसे मिला, बट आई वुड से कि ट्राई टू गेट योर चांसेस फेयरली, बिकॉज अनफेयर मीडियम से लिया हुआ कोई भी चांस आपको फिर वही वही बुराई भलाई वाली बात आ जाती है कि किसी का बुरा करोगे तो वो घूम के वापस आपके पास आएगा, और अच्छा करोगे तो वो भी घूम के तो इसीलिए डू वेल टू एवरीवन. कोशिश करो, सबकी हेल्प करो, एंड somebody will definitely help you at time अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो. Great. तो सबसे बड़ी बात देखो, we are just not speaking about the corporate, and we are also speaking about the real life experience as well, राइट राइट. right? क्योंकि अब आपने कहा कि ग्रो करो, अगर मैं जीएम हूं तो मैं आगे भी जाऊंगा, ठीक है. It doesn't about the fame, but you have to be success in your life, राइट right? राइट. कुछ मोड़ पे ऐसी चीजें भी आती है कि वो आप सक्सेस की ओर होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहीं रह जाती है. लेकिन it doesn't mean that you will give up from that point. You have to keep trying, and you also have to focus on the hard work and the smart work as well. Absolutely. And I really like the idea, and your channel and the initiative which you have started, Tarun. I really liked it because Mhm, every person, right? Every I mhm, would say every successful person. I'm not talking about famous persons. I'm talking about successful person have a mhm. different story जहाँ से हम बहुत Right, कुछ सीख सकते हैं, राइट. मैंने right. अपनी लाइफ जी है 40 साल. मैंने मेरा एक फंडा था कि लोगों की हेल्प करो, सपोर्ट करो, ग्रो करो. Mhm, There mhm, can be other people who have other mantras in their life. So mhm, people who are in who are who I would say the kids, जो बच्चे हैं mhm. अभी या जो अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में हैं, for them these things will be very helpful. कि Correct. they learn from the leaders कि how these people have grown in their life. Again, they have to take whatever route they want to take, बट एट द Mhm, एंड ऑफ द डे दे कैन डिसाइड. क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ये होता है ना कि दीज आर फेमस पीपल, उनकी लाइफ में एकदम से ऐसा हुआ, एक दिन वो जा रहे थे, किसी डायरेक्टर ने mhm, देख लिया, उठाया, पिक्चर बनाई, हीरो बन गए. वो थे ना mhm, रजनीकांत थे. ही वाज अ बस कंडक्टर इन चेन्नई. किसी ने Right. उनको देख लिया, हीरो बन गए, और आज वो गॉड है. ऐसा बहुत कम Mhm. लोगों के साथ होता है, बहुत लेकिन रेयर. एक और बात भी है, मेहनत तो उन्होंने भी करी, हम मना नहीं कर रहे कि मेहनत उन्होंने नहीं करी, बिल्कुल बिल्कुल करिए. और राइट. and he has helped a lot to the people. अगर अगर रजनीकांत ने लोगों को हेल्प नहीं किया होता तो शायद वो लोग उनको नहीं पूछते आज उधर चेन्नई में. तो he has helped the people. He had done lot of hard work in his life, और अभी भी कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ दिया. अमिताभ बच्चन को देखिए, एग्जाम्पल, लाइव 82, एग्जाम्पल. 82 years, 82. still doing movies, still doing those dance actions,
I, I recently saw a trailer of his recent movie, Uchai, and he was doing the dance, yoga, and everything. So never give up. That's the motto you have to take. देखिए यही चीज है ना, देखो हमको उनके बारे में सब पता है कि वो 82 ईयर्स के हैं, वो अभी भी कर रहे हैं, रजनीकांत ने ये मेहनत करी, Hmm. बट मैंने I'll come with that interview as well. The person was a PN in a college at the age of 21. Now he's a successful person in a corporate IT, and even though he's in IT, and he has already done a startup in between of his career, and now he's earning very well. तो Fine. कहाँ उसने पीएन से वहां वो स्टार्ट किया, कहाँ उसने एज स्टार्ट की, उसके मतलब चार भाई। अब आई कम विद दैट पॉइंट, आई डोंट हैव अ प्रॉपर स्टोरी ऑफ हिम, बट Hmm. कैसे उसने फैमिली सर्वाइव किया, कैसे पीएन से वो एक आईटी के अंदर एक अच्छी सक्सेसफुल पोजीशन के अंदर है और अच्छा काम कर, मैंने ये चीज भी देखी है। वो कोई नहीं जानता, वो कोई नहीं बिल्कुल जानता। बिल्कुल and with your channel, I हम्म, would I want people to know about these stories also, and we have a हम्म, lot of stories around us. It is just yes, that we don't know those stories. So हम्म, thank you for giving this opportunity to give my story to the whole world. People will हम्म, अंडरस्टैंड कि यार ऐसा भी हो सकता, मतलब ऐसा भी हो सकता है लाइफ में कि एक छोटा सा लड़का गांव में रहने वाला और दिल्ली आके सक्सेसफुल हो जाए, बहुत बड़ी एमएनसी में जाके जीएम बन जाए, तो ऐसा लाइफ में हो सकता है. इट इज हम्म, जस्ट दैट you have to dream for that, and I really I would love this idea of getting stories from people, because successful story everybody knows, but ये छोटी छोटी जो stories आप cover कर रहे हो, this will give. हम्म। और अगर मैं बोलता हूँ we will be able to motivate at least 10 people from my story, I'll be more than happy कि यार 10 लोगों ने मेरी लाइफ से कुछ सीखा और अपने लाइफ को इजी करा. अगर राइट डायरेक्शन में मेहनत है तो शायद 10 क्या 10,000 भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो बट इट सकता है. विल टेक टाइम। हाँ. आपको 15-20 साल लग गए इस पोजीशन में पहुंचने में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. हमारे पास तो कोई वो भी नहीं था, वी डिड नॉट बॉर्न विद अ स्पून, हाँ. सिल्वर स्पून और गोल्डन स्पून। बिल्कुल तो बिल्कुल. वहां से यहाँ पहुंचे तो टाइम लगता है हर चीज के अंदर। अगर आज मैं चाहूँ आज मैंने मुकेश का इंट्रो लिया, नाउ आई बिकेम अ फेमस गाय, नो, आई विल नॉट, आई विल नेवर। राइट राइट. So the last question from this interview, and we will come on to the second part. We'll discuss about the latest technology and the layoff. We'll discuss later on to it. That part two will come later. But this is only a part one, because if we will stretch this conversation along, definitely Yeah. it will be a Yeah. bore for everyone. Yeah. So if you have any myth about your job or your industry you are currently working in, कोई आपको ऐसे myth है या ठीक है यार इस इंडस्ट्री से या wherever you are working in, ऐसा कुछ अभी? myth, if you say myth about this industry, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज लगती है कि आईटी इंडस्ट्री will survive for 1,000 years. That is the only myth I have, and I'm hoping this will be true, so that we have people earning their lives and living their lives in a better way. IT can help those people. So that is a myth which I want to believe. I know it is not true, because every 20 years you will see that there's a change in the entire world, different things, and you will see the businesses which were doing good 10 years back, they are not doing it very well. We have new businesses, we have new ideas, you have new entrepreneurs. So my my only myth for IT industry is it will survive for another 1,000 years or so, and it will take India forward. That's what my only wish is, and that's the only myth I thought about IT industry. तो मतलब 1000 years रहेगी तो आपके बच्चे बच्चों के बच्चे बच्चे के क्या क्या बच्चे क्या पता दोबारा जन्म ले ले और फिर जीरो से स्टार्ट करे आईटी में, तो शायद. उसका कुछ नहीं पता, लाइफ का कोई भरोसा नहीं, आज हम हैं कल ना हो, कुछ बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। तो अब बिल्कुल. यू हैव ऑलरेडी सीन दी स्टोरीज हाँ अराउंड यू, हाँ. कोविड स्टोरीज. या या. COVID stories and heart attack stories, a lot of stories are going on. तो राइट. लाइफ से अब आज कोविड है कल कुछ हो रहा है कुछ नहीं पता। बिल्कुल. तो मैंने एक स्टोरी आपकी और भी मैंने मतलब शेयर करना चाहूंगा। एक स्टोरी है जो शायद मुझे ही पता है, बस थोड़े से 2 मिनट और लेना चाहूंगा आपके उसमें, कि जब आपकी शादी हुई थी, यू मैरिड अर्ली, हम्म, राइट, एंड यू डिड नॉट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, हम्म, and even though I can say you did not have the handsome salary in your hand, राइट. right? तो एक वो कंडीशन जो हर
मोस्ट ऑफ 70% कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के साथ होती है, तब भी आपने उसके साथ सर्वाइव किया। तो बस एक जस्ट उसकी एक ग्लिम्स अगर आप देना चाहे तो, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड एनी। Absolutely, Tarun. And so when we were working, and nowadays after COVID, the salaries has gone high, sky high. I would say IT industry was not that much. I would say uh, good paymasters when we started our careers, and when I got married. So initially, whatever salary I got, I used to spend it on myself. We don't have that thing called saving and all. And I got married, and I realized that my expenses have doubled because we are two people now to eat at my home. So इनिशियली बहुत डिफिकल्ट हुआ। बहुत बार ऐसा भी होता था कि महीने के एंड में सैलरी आने का वेट करना पड़ता था कि यार आखिरी के 5 दिन बचे और अकाउंट में 500 रुपये पड़े हुए हैं। तो वो तो अभी भी होता है मेरे ख्याल से। अब टचवुड नहीं होता है, मतलब हाँ 500 नहीं होता है, बट अब इतना अगर एक एक आध महीना सैलरी ना आए तो अभी चल जाता है। बट उस टाइम ऐसा होता था कि अगर कभी सैलरी आपकी अगले महीने नहीं आई या एक दिन भी लेट आ गई, योर एंटायर बजट विल बट खत्म हो जाता था सारा का सारा बजट। तो आई हैव सीन दैट टाइम आल्सो, एंड आफ्टर आई गॉट मैरिड there were times we don't have that much of money और खर्चे बहुत ज़्यादा थे। माई वाइफ सपोर्टेड अ लॉट एट दैट टाइम। वी वी आई वुड से कि खर्चों को मिनिमाइज किया, सेविंग्स बढ़ाने की कोशिश की। बट देन आई रियलाइज्ड एट दैट टाइम कि सब यार कुछ करना चाहिए। हाँ, कि खर्चे कम करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज टू इंक्रीज योर अर्निंग। एंड दैट वाज अ गोल्डन मोमेंट इन माय लाइफ, जहाँ से मुझे लगा कि हाँ, नाउ इट्स द राइट टाइम, अपनी अर्निंग्स इंक्रीज करते हैं। और उसके बाद तो फिर कभी मुड़ के देखा नहीं। एंड देन फाइनली आई एम राइट नाउ एट फाइनेंशियल फ्रीडम, यू कैन से कि अभी ऐसा नहीं है कि कभी एकदम से पैसे की जरूरत पड़े तो यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी। तो बट यस, वी ऑल ऑफ अस हैज डिफिकल्ट टाइम्स, बट थैंकफुल टू गॉड। नेवर गिव अप, नेवर नेवर गिव गिव नेवर गिव अप, नेवर से नेवर। अप। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज्यादा, कि आपका फर्स्ट एपिसोड मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। या और दिस इज द चैनल नेम इज रिप्लाई टू ऑल, right? Reply to all, just a formal word which we say if you want to reply to all managers. यस। This सो reply to all those guys who are still confused what exactly we are doing, whether we are in hell, whether we are in heaven, and how we will achieve and how we will get that position. तो कैसे करना है वो देखो, कई डायरेक्शन में मैंने जा रही है। बस मेरा तो ये है कि जो लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, मैं फेम की बात नहीं कर रहा, मैं स्टार्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आपकी अराउंड, जो आपके ऑलरेडी काम कर चुके हैं और आगे अचीव कर चुके हैं और आगे कर भी रहे हैं, तो उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी और आपको कैसे सही डायरेक्शन में जाना है। विल कीप कमिंग ऑन टू द न्यू पॉइंट्स, बट अगर हम इसी को बढ़ाते रहेंगे तो ये बातें तो 8 घंटे भी चला लो बिल्कुल चलती रहेगी। नहीं, बिल्कुल। तो Thank you so much, Tarun, for giving me this opportunity, and thank you for shooting me as the first interview for your channel and for your startups. And I'm really thankful for you, and I'll remain thankful for my entire life for this opportunity. हो सकता है कि आप बहुत सारे इंटरव्यूज लो, but I will be the first, जरूर right? तो So फर्स्ट तो हर कोई जानता so है। thank you so much for giving this opportunity, and I'm very hopeful that this will help other peoples around us, and we'll see you around. Yeah, sure. Definitely, we'll meet again. We have a lot of topics which actually I want to cover up, Sure, right? So we'll meet again. We'll have another discussion along with the other stakeholders as well. sure. So we'll meet again, sir. Sure, Okay. definitely. Thank you so much. Thank you, Ji. Thank you. Namaste. Bye. Namaste. Good night. Bye bye. Good night. Thank you for your precious time. I hope you really liked it. So, this was our first podcast, and let us know your feedback in the comment section.